myself Yugandhar sir. Welcome to in this video. In the previous video, we saw chapter number 16 and 17. In that chapter number 16, we see the action words. We see the action words in the part of verbs. In the part of verbs, we see the different types of action: eating, reading, walking, running, like this. After that, we saw a verb. Aim is are. Where we use aim, where we use a, and where we use are. Where we use aim, there the place of I, that time we use am. And where we use is, that time there one thing is there, that time we use is. Okay. And next we see are. Next we saw the are. Where we use are, more than one thing, that time we use the are. Okay. So in this video we see standard of our subject English grammar. Chapter number 18, verbs, was and where. Was and where. इसका मतलब बच्चों मैं आपको बताता हूँ. We use was where to talk about the things in the past. Is and am becomes was and are and becomes where in the past. तो बच्चों इसका मतलब है was and where. तो ये was और जो where है वो हम कब यूज करते हैं? जो क्रिया पीछे हो गई, जो क्रिया हो चुकी है, तब हम क्या यूज करते हैं? was and where. जब एक थिंग होगी, जैसे कि one thing is there, that time we use was. In the past we do the one thing. Yesterday I am not going to the school. Yesterday. For example, yesterday I was in the park. Yesterday I was in the village. Yesterday I was in the shop. Like this word. Yesterday. Yesterday का मतलब होता है कल. जो घटना बीत चुकी है, जो घटना जो क्रिया होती है, वो क्रिया बीत चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस. जैसे कि मेरा खाना खा कर हो गया. मेरा खाना खा कर हुआ. Yesterday's lunch is very tasty and nice. Okay, so like that words we have to use here. Okay, so for example, in the present tense and past tense, how do we use the examples? Okay, so see, present tense. Present tense. और नेक्स्ट है पास्ट टेंस. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझना है? प्रेजेंट का मतलब अभी अभी शुरू है. अभी अभी शुरू है. प्रेजेंट का मतलब अभी अभी शुरू है. और पास्ट का मतलब क्या होता है? जो शुरू है वो कल हो गया था. जो शुरू है वो कल हुआ था. प्रेजेंट का मतलब अभी शुरू है. आई एम टीचिंग. Okay, yesterday I am also teaching. Okay, that's right. Okay, present tense and past tense. तो present tense और past tense में हम I, he, she, we, you, they कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे यहाँ पे. Okay, so see the first I am. I am. तो present tense में हम क्या लिखेंगे? I am. और वो पास्ट टेंस में क्या होगा? I was. I was. तो here we use one thing. One thing that time we use was. One thing was. I was. Next you are. You are. तो you are के बदले हम क्या लिखेंगे? You were. You were. Okay, next word he, she, it, is. He, she, it, is. Okay, that time we use he, she, it was. He, she, it and was. ये जब आएंगे, that time we use in the past tense was. That time we use was. अगर he, she अगर ये आता है तो हमें वहाँ पे क्या यूज करना है? was यूज करना है. was. और प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? he, she जब आता है तब हम क्या यूज करते हैं? is. Next we are. We are. We use in a present tense. In the past tense we use we were. We
wear. Okay, so second last, you are. Or here you wear. Or last one is there, they are and they wear. They are and they wear. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो टेबल है, ये टेबल हमें क्या करना है, बार बार रीड करके दोहराना है। ये क्या करना है, हमें टेबल रीड करके दोहराना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आवर एग्जाम, फॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हमें क्या करना है, जब आई एम आता है तो प्रेजेंट टेंस में आई एम आता है, तो पास्ट टेंस में उसका क्या हो जाता है, आई वाज हो जाता है। जब प्रेजेंट टेंस में यू आता है तो पास्ट टेंस में उसका क्या हो जाता है, यू वेयर। ही शी इट इज। ही शी जब आता है प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज। और जब पास्ट टेंस में आता है ही शी इट, दैट टाइम वी यूज was. He was a very nice guy. He was a very beautiful person. Next, she was a very beautiful. She was a very nice girl. She was a very honest girl. It was a very nice thing. It was very good. So like that words we have to use. That like sentence we have to use. Okay. So we are, we were, you are, they are, they were. Okay. So we see the questions, question A, question B and question C. Okay. तो बच्चों आपको क्या है, टेबल आपको रीड करना है। ये टेबल आपको क्या होमवर्क है, टेबल आपको नोटबुक में लिखना है और रीड करके रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हमें याद भी रखना है कौन सा वर्ड कब इस्तेमाल करना है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में कब यूज करना है और पास्ट टेंस में कौन से वर्ड्स यूज करना है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है अभी शुरुआत है, और पास्ट टेंस का मतलब होता है पीछे का वक्त। पीछे के वक्त में हम क्या बोलेंगे, तो आई वाज, यू वेयर, शी इज, इट इज। तो हमें क्या करना है, ये यूज करना है। ओके, सो आई हैव दिस। तो बच्चों ये क्या करना है, आपको पॉज करके क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है। Okay, so see the first question A. Rewrite the sentence changing am, is, are to was, were. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटेंस चेंज करना है। जैसे कि I am happy today। तो पहला सेंटेंस क्या है, I am happy today। happy today। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, एम, इसका मतलब है प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। और इसको पास्ट में करने के लिए हमें क्या यूज करना है, was and were। तो was और were कैसे यूज करेंगे, तो सेकंड वन सेंटेंस यहाँ पे दिया है, I dash happy yesterday। happy yesterday। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एम, आई एम हैप्पी टुडे। तो ये क्या होगा, आई एम की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो टेबल में पहले दिखा था, आई वाज। तो पास्ट टेंस में इसका क्या होगा, आई वाज हैप्पी yesterday। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये टेबल में यहाँ पे दिया आई एम, और उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, आई वाज। ऐसे करके आपने क्या किया, ये सेंटेंस क्या किया, पूरा चेंज किया। मैं कल क्या था, आई वाज yesterday, आई वाज हैप्पी yesterday। मैं yesterday को क्या था, हैप्पी था। ऐसे करके नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, the books are in my bag। the books are in my bag। The books are in my bag।
The books dash in my bag. तो बच्चे आगे हम क्या यूज करेंगे? द बुक्स. तो here one thing or one more than one thing, more than one thing. So here what where in the present tense the books are in my bag. are हम ये are हम कब यूज करते हैं? जब बहुत सारे थिंग्स होंगे तो हम क्या यूज करते हैं? are. और यहाँ पे क्या बताया मैंने? was कब हम यूज करेंगे? अगर one thing हो तो हम was यूज करेंगे और where कब यूज करेंगे? बहुत सारे थिंग्स होंगे तो हम where यूज करेंगे. So the books were in my bag. Okay, like this sentence there are three sentences you have to solve in your book. Okay, so next complete the sentence with was or were. तो बच्चों बी सेंटेंस बी जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? was for one thing and were for more than one thing. तो बच्चों जैसे कि पहले मैंने बताया था was हमें कब यूज करना है? एक ही थिंग होगी तो हमें वहां पे लिखना है was लिखना है, और बहुत सारे थिंग्स होंगे तो वहां पे क्या लिखना है? were. तो इसी तरह बच्चों आपको जो क्वेश्चन नंबर बी है वो कंप्लीट करना है. So first one I will solve here. Mary was playing on the swing. तो मैरी अकेले क्या खेल रही थी? झूला झूल रही थी. तो मैरी क्या है? अकेली है. मैरी क्या है? अकेली, इसलिए हमने क्या यूज किया? was. अगर बहुत सारे होते तो हम क्या यूज करते? we were playing on the swings. we were playing on the swing. तो मेरी वहां पे आ जाता क्या? नहीं, वहां पे we आ जाता. we का मतलब होता है हम सब. इसी तरह बच्चों आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर बी आपको क्या करना है? सॉल्व करना. Third question number C. Rearrange the words to complete the sentence. Okay. So हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर C. तो बच्चे आपको समझ में आया? तो इसी तरह से आपको क्या करना है? ये सेंटेंस पूरा करना है. तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस है पार्टी वेयर at हाँ. अब हमें क्या करना है बच्चों? ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है. लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? रीअरेंज द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. ये जो वर्ड्स है क्या है? उलट-सुलट वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स इधर आता है, ये वर्ड्स इधर जाता है. हाँ, तो ऐसे करके क्या करना है? हमें वर्ड्स यहाँ पे क्या करना है? लिखना है. we were. तो हमें क्या करना है? पहला वर्ड लिखना है we were party at. we were party at yesterday. we were party at yesterday. तो बच्चों आपको समझ में आया यहाँ पे क्या कहना है? So those words we have to rearrange and we have to write a correct sentence. we were party at yesterday. तो कल हमने क्या की थी? पार्टी की थी. इस तरह से बच्चों आपको करना है ऐसे सेंटेंस क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है. ओके, सो नेक्स्ट वन. योर ड्रेस ब्यूटीफुली. तो सेकंड वन सी ड्रेस ब्यूटीफुल इज. तो ऐसा सेंटेंस है तो हमें क्या करना है? सेंटेंस कंप्लीट करना है. योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल.
योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल। इस तरह से बच्चों आपको करना है, ये जो सेंटेंस है रीअरेंज करना है, वो आपको करना है ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपको समझ में आया कैसे करना है। जो मैंने 1 और 2 आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, तो जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है, वो जो 4 सेंटेंस है, वो आपको करना है खुद ही सॉल्व करना है, और आपको करना है पेरेंट्स की हेल्प लेनी। Okay, so next we see the chapter number 19. In the chapter number 19 we see the verbs have and has. Okay, chapter number 19. Chapter number 19 has and have. Has and have. तो बच्चों ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पे यूज करने वाले हैं हैज एंड हैव। वी यूज हैज हैव टू टॉक अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स एंड पैशन। तो बच्चों ये जो फैमिली, फ्रेंड्स और पैशन, पैशन का मतलब है जो हमारे अंदर की कला होती है, वो कला हम कैसे लोगों को दिखा सकते हैं, वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज एंड हैव। फ्रेंड्स फैमिली, फैमिली फ्रेंड्स एंड पैशन, जो हमारा पैशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड्स यूज करेंगे हैज एंड हैव। सो वी आल्सो यूज दिस वर्ड्स टू टॉक अबाउट फिजिकल appearance, physical appearance. So for example, I have, we have, you have, you have, he, she, it has, they have. Okay, so she has a red balloon, we have a blue balloon, she has a red balloon, उसके हाथ में क्या है, एक ही balloon है। we have a blue balloon, हमारे हाथ में कितने balloons है, blue balloons है। So see, we use has when we are talking about things that belong to one person and have for things that belong to one or more person. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, तो has कब इस्तेमाल करना है, only one person is there, that time we use has, only one person, वहाँ पे एक ही व्यक्ति है तो हम यूज क्या करेंगे, have, और बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, have। तो फॉर एग्जाम्पल तो बच्चों पेज नंबर 33 पे बताया गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई डॉट डॉट अ गुड फ्रेंड, हिज नेम इज पॉल। तो बच्चों यहाँ पे उसका फ्रेंड कितने हैं, बहुत सारे या एक है, सो उसका फ्रेंड एक ही है। सो आई हैव अ गुड फ्रेंड, हिज नेम इज पॉल। सो व्हाई वी यूज हैव, बिकॉज देयर इज वन फ्रेंड, बिकॉज देयर इज अ वन फ्रेंड, दैट्स व्हाई वी यूज HAS हैव। ओके, तो वन पर्सन है, वहां पे ओनली वन पर्सन, इसलिए हमने क्या यूज किया, हैज यूज किया। सो बेन डॉट डॉट अ न्यू क्रिकेट बैट। सो बेन हैज अ न्यू क्रिकेट बैट। तो बेन ने एक ही बैट लाई थी या बहुत सारी बैट लाई, तो बेन ने ओनली वन बैट इज देयर, सो दैट्स व्हाई वी यूज बेन हैज अ न्यू बैट, न्यू क्रिकेट बैट। मंकीज लॉन्ग टेल्स। तो मंकीज, यहाँ पे ओनली मंकी लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, मंकी। यहाँ पे बहुत सारे मंकी है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। तो मंकीज को क्या, जो बंदर्स होते हैं उन बंदर को क्या होते हैं, पूछे होती है, तो बंदर को क्या होते हैं, पूछे। माय पेरेंट्स डॉट डॉट अ ब्लू कार। सो माय पेरेंट्स हैव अ ब्लू, माय पेरेंट्स हैज अ ब्लू कार। तो यहाँ पे माय पेरेंट्स, इसका मतलब होता है माय पेरेंट्स, तो इसका मतलब है वहाँ पे ओनली वन पर्सन, माय पेरेंट्स, हमारे पिताजी और माताजी कितने होते हैं, एक ही होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होना है क्या, हमें नहीं। सो माय पेरेंट्स हैज अ ब्लू कार। इसी तरह बच्चों आपके जो नीचे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपको क्या करना है, इसी तरह पूरे करने। So next rewrite this sentence using got. So see, we say I have or I have got. She has, she's got. They have or they have got. Remember you can use the short form with got. I have got blue eyes. I have got a blue eye. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि I have, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, I have, इसका शॉर्ट फॉर्म है I have, like this is the short form। She is,
तो मैंने बताया था पहले ही शी इज, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है शीज। तो इसे हम क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म, छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग गॉड। ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में आज हमें क्या यूज करना है गॉड यूज करना है। शी हैज टू सिस्टर्स, शी हैज टू सिस्टर्स। तो बच्चों इस सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है G-O-T गॉड। So she's got two sisters. She's got two sisters. She's got two sisters. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा she has, तो हमने क्या हुआ उसका she's, उसका क्या किया हमने she's। ओके तो ये है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो she has इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है she's। ओके like these are the short forms. So next one we see the second sentence. He had one brother and two sisters. He has one brother and two sisters. तो बच्चों यहाँ पे क्या पता है ही है उसको क्या है एक भाई और दो बहनें हैं, एक भाई और दो बहनें। तो हमें क्या करना है इसका शॉर्ट फॉर्म लिख के क्या करना है सेंटेंस कंप्लीट करना है। he's got one brother and two sisters। और हमें क्या करना है यो है ये इसका हमने क्या किया इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसका क्या किया हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा। और हमें क्या करना है उसके आगे यहाँ पे क्या करना है गॉट लिखना है, जो सेंटेंस है जैसे है वैसे यहाँ पे क्या करना है वहां पे लिखना है। इसमें भी हमने क्या किया शी है, ये दोनों को हमने क्या किया मिलाया और ये कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट किया, ये दोनों मिलकर ऐसे होते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है और ये शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या करना है वहां पे गॉट यूज करना है और इसी तरह हमें क्या करना है वो कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। तो बच्चों जो सिचुएशन है आपको ना मैंने पहले बताया था वॉज कब इस्तेमाल करना है और वेयर कब इस्तेमाल करना है। द वन थिंग होता है तो हमें वॉज यूज करना है और वेयर होता है तो हमें कहना है मोर देन वन थिंग। तो बच्चों बहुत सारे थिंग्स होंगे तो वेयर यूज करेंगे और वन थिंग होंगे तो वॉज यूज करेंगे। तो चिल्ड्रन द चिल्ड्रन वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। द चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे और चाइल्ड का मतलब होता है ओनली वन। चाइल्ड है क्या वहां पे नहीं, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे। तो इसी तरह द चिल्ड्रन वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, तो बच्चे वहां पे क्या कर रहे थे गाना गुनगुना रहे थे। तो इसी तरह बच्चों आपको क्या करना है वहां पे हैज और वेयर आपको क्या करना है वहां पे यूज करना है। ओके सो नेक्स्ट वी सी द ing। okay so in that ing where we use ing, so see the ing words are doing words or verbs, they tells us what is happening now. We often use them with r or a to complete the words. For example, listen carefully, page number 35. Jenny, what are you doing? Jenny says, what are you doing, Nick? Nick says, I am painting a picture. Nick says, Jenny says, what are you painting? Nick says, it is an animal. It has a green eyes. Jenny says, it is a cat. Nick, no, it is a tiger. तो बच्चों हमें क्या करना है वो वर्ड्स यूज करने हैं ing। फॉर एग्जांपल प्लेइंग, स्कीपिंग, फ्लाइंग, राइडिंग, कुकिंग। तो बच्चों आपके सामने ये पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स में जो वर्ड्स आपको दिखते हैं उसको कहना है आपको वहां पे लिखना है। तो पहला क्या है चूज द करेक्ट डूइंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक वर्ड्स डूइंग तो कर रहे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वो कर रहे हाँ। तो पहले बच्चे क्या कर रहे हैं स्केपिंग और रो, स्केपिंग और रो। तो हमें क्या लिखना है
व्हाट इज शी डूइंग, ये बच्ची क्या कर रही है, शी इज स्किपिंग, शी इज स्किपिंग, तो हमें क्या लिखना है, वहां पे वर्ड लिखना है, शी इज स्किपिंग, एस के आई डबल पी आई एन जी। नेक्स्ट व्हाट इज ही डूइंग, ये बच्चा क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, आर ई ए डी आई एन जी। तो इसी तरह बच्चों आपको ये पिक्चर्स देखने और यहाँ पे वर्ड्स देखने और यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है। So next answer the questions using correct ing words from the book। तो बच्चों यहाँ पे जो पिक्चर है, पिक्चर में आपको क्या कर रहा है, वहाँ पे रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, स्विंगिंग, फ्लाइंग और प्लेइंग वहाँ पे आपको दिखा है। तो आपको इस पिक्चर में कुछ क्वेश्चंस पता है तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करना है, वहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द बॉयज डूइंग, द बॉयज प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, तो बच्चों वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, द बॉयज आर प्लेइंग। सेकंड वन, व्हाट इज द गर्ल डूइंग, द गर्ल इज स्विंगिंग, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। थर्ड वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डॉग डूइंग, तो वहां पे जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है, द डॉग इज रनिंग, द डॉग इज रनिंग। व्हाट इज बटरफ्लाई डूइंग, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग। ओके, दैट्स लाइक वर्ड्स वी हैव टू यूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो सी द लास्ट वन, form the correct words by adding ing। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे ing क्या करना है, पूरा करना है, लिखना है और कुछ ऐड करना है और क्या करना है, वहाँ पे वर्ड्स पूरा करके लिखना है। तो फर्स्ट वन वर्ड देखो, play प्लस ing। नेक्स्ट वन feed या डबल ईडी, फीड प्लस ing। थर्ड वन वॉकिंग, WALK, वॉक प्लस ing। तो बच्चों ये ध्यान से सुनो, ये दोनों वर्ड्स हमें क्या करना है, यूज करना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से सुनो। प्लेइंग, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों वर्ड्स एक साथ लिखेंगे, PLAYING, प्लेइंग। नेक्स्ट फीडिंग, FEDING, फीडिंग। ओके, थर्ड वर्ड WALK प्लस ing, तो इसका क्या होगा, वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। ओके बच्चों, इसी तरह से आपको क्या करना है, जो चैप्टर आज हमने सीखे कौन से 18, 19 एंड 20, ये क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, so in the next video we see the 22 and 23. Okay, so all the students complete your homework. This is your homework, you have to complete in your home. Okay, thank you all of you.